Hi guys, it's Shreya here and welcome back to my channel, My Perfume Diaries. In today's video, I'm going to talk about 3 fragrances from Adil Kadri. Now, received all the fragrances in this box like this, very well packaged, no damages to any of the perfumes. The 3 perfumes that I'm going to talk about is Lazina, which is this one. The second one is Safira, which is this red and black. And then I have White Oud. So these are the 3 fragrances that I'm going to review in today's video. I have tested and tried these for more than 2 months now. So I'm definitely ready with my review. I wanted to do a haul video actually. I first thought I'll do a haul video and then I will do a separate review video. But then I just kept using these fragrances and testing and trying and kind of like I thought now there's no point of doing a haul because I did not purchase any more fragrances from Adil Kadri. Just have 3 fragrances. Let me just combine a review video for you guys. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So Adil Kadri, if in case you don't know, it's a Indian perfume house and their perfumes are available at adilkadri.com and they suddenly became very famous when they came on Shark Tank and that's where they introduced their Shania perfume. From there, their business and market and everything just bloomed, and after that Adil Kadri has been releasing a lot of fragrances which are sometimes Middle Eastern inspired, sometimes they are designer inspired and stuff like that, but most of their fragrances are kind of like Middle Eastern inspired. I started my Adil Kadri perfume journey from Shania, Ittar and Shania perfume. I still have that in my collection. बहुत थोड़ा सा बचा है, but I still use them. I still like it. And it is a kind of fragrance जहाँ से आप अपने Middle Eastern fragrances का journey शुरू कर सकते हो. क्योंकि Shania मतलब Middle Eastern तो बहुत है, लेकिन उसमें थोड़ा एक modern touch भी है. It's like a chocolatey, rose, oud, woody, sweet kind of a fragrance, which is kind of good starting point if you are willing to start your Middle Eastern perfume journey. वो scent profile और टेस्ट डेवलप करना, उसके लिए शनाया एक बहुत अच्छा स्टार्ट है. मुझे शनाया पर्सनली बहुत पसंद है. उसके बाद आदिल कादरी ने शनाया गोल्ड निकाला, उसके और वेरिएंट्स निकाले, AQ 365 निकाला विच इज लाइक आदिल कादरी 365 डेज. वो एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है. अभी हाल ही में आदिल कादरी ने कुछ और फ्रेग्रेंसेस निकाले हैं जो उनके लक्स एडिशन के हैं, जो थोड़े 2000-3000 वाले रेंज के हैं. वो मैंने अभी तक टेस्ट एंड ट्राई नहीं किए हैं क्योंकि इतना ही स्पेंड करना है तो मैं एक प्रॉपर मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस ही खरीद लूँ, वो मेरा मेंटालिटी था, तो मैंने नहीं खरीदे उनको. तो अब हम शुरू करते हैं लजीना के साथ क्योंकि इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे थे. तो थोड़ा मेरा इंटरेस्ट पीक हुआ जस्ट बिकॉज पीपल वर टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस. मैन विमेन all like perfume influencers, they were talking a lot about Lazina. I really wanted to try this one. Lazina comes in this cutesy box which is pink and kind of like blue with golden details. It sort of reminds me of Marshmallow blush because it has kind of like similar toned colors going on here. And then this is how the bottle looks like. It's an ombre of white to pink with golden details of Adil Kadri and golden cap. बहुत अच्छे से tightly fit है ये cap. आप बिल्कुल मतलब and खींच के ये cap ऐसे निकल जाता है. एटोमाइजर काफ़ी अच्छा है, अच्छा स्प्रेयर है, डिफ्यूज अच्छा कर. फ्रूटी, स्लाइटली फ्लोरल, थोड़ा सा ग्रीन, एक्वाटिक, हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक, वेनिलिक सॉर्ट ऑफ अ फ्रेग्रेंस है. नाउ आदिल कादरी के वेबसाइट पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर रही थी जब मैं पता करना चाहती थी कि इसमें नोट्स क्या है, परफ्यूम स्टोरी क्या है, ताकि मैं वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ. बट फनी इनफ आदिल कादरी के वेबसाइट पे उनकी परफ्यूम स्टोरी ही मेंशन नहीं है. ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है दिस इट कंटेन्स अल्कोहल, यूनिसेक्स, फ्रूटी, फ्लोरल, स्वीट, वुडी, यही है. और फोटो में उन्होंने दिखाए हैं कुछ लीची, कुछ पीचेस, थोड़ा सा हल्का सा पानी, थोड़ी सी बेरीज. तो यू टेक अ गेस कि परफ्यूम कैसा होगा. मेरे नोज़ ने परसीव किए हैं वो मैं आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी क्योंकि नोट्स ब्रेकडाउन तो आदिल कादरी के वेबसाइट पे नहीं है अवेलेबल, जो कि थोड़ा अनोइंग भी है क्योंकि इफ़ यू आर काइंड ऑफ लाइक नॉट फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ नोट्स, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सेंट स्टोरी कैसी होगी. बट एनीवेज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. मुझे लगता है कि दिस ओपन्स अप विथ बेरीज, थोड़ा सा मलबेरी, स्ट्रॉबेरी, लीची का इसमें इफेक्ट आता है, थोड़ा हल्का रोजी और हल्का सा बर्गमॉट का इफेक्ट आता है. तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट नोट्स आते हैं मुझे. फिर इसमें मस्क मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है, एक एक्वाटिक मरीन टच मुझे लगता है, हल्का सा सेडार वुड है इसमें एंड डेफिनेटली एक ग्रीन नुआंस है. तो जैसे लीची का जैसे छिलका रहता है, आप जब लीची के छिलके को रिमूव करोगे तो आपके हाथ में वो जो एक छिलके का बिटरनेस, एक छिलके का ग्रीन नुआंस, उसके साथ लीची का जूस प्लस दैट स्वीटनेस, वो जो 3 चीज़ें मिक्स होकर आपके हाथ पे लगेंगी ना, वो इसकी ओपनिंग में आता है. तो मुझे लगता है कि हल्का सा वो बर्गमॉट और उन सब के इफेक्ट्स की वजह से शायद वो एक ग्रीन नुआंस इसमें ऐड हो रहा है, बट वो डेफिनेटली शार्प है. वो लीची का नोट वो ग्रीन नुआंस के साथ थोड़ा शार्प ओपनिंग है इसकी.
वेल राउंडेड नहीं लगता ये मुझे, उस वजह से मैं आपको हाईलाइट करके वो चीज़ बता रही हूँ। इसमें फिर एक वो एक्वेटिक मरीन टच ऐड होता है, हल्का से एक मॉसी टच भी इसमें ऐड होता है, वो ग्रीन नुआंस थोड़ा सा उठ के आता है, और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मिल्क शेक वाला नुआंस एडेड है विद सम वुडीनेस। मेरे हिसाब से ये इसकी परफ्यूम जर्नी है बेस्ड ऑन माई नोज एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस। नाउ इस टाइप का फ्रेग्रेंस आई वुड हैव लव्ड टू वेयर ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, क्योंकि ये एक हल्का प्रोजेक्शन, एक हल्का सियाज देता है। ये बहुत लाउड, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ऐसे बीस्ट मोड वाला फ्रेग्रेंस नहीं है। ये काफ़ी डेलिकेट, फेमिनाइन, काफ़ी क्लोज टू स्किन काइंड ऑफ परफ्यूम मुझे लगा। आई गेट अ लॉन्जिविटी ऑफ 5 to 6 आवर्स विद अराउंड 7 to 8 स्प्रेज। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने का नीड मुझे इसके साथ लगा टू गेट मी थ्रू 6 आवर मार्क, एंड ये मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगता है ऑफिस में पहन के जाने के लिए, क्योंकि एक अच्छा सा स्वीट डेलिकेट फेमिनाइन वाइब देता है ये, विच इज़ नॉट ऑफेंसिव। द फ्रूटीनेस इज वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। एंड इसमें एक फेमिनाइन पाउडरी, एक हल्का सा टैल्कम पाउडर वाला टच भी आता है। इट काइंड ऑफ गिव्स यू रिमाइंडर ऑफ अ पिंक पाउडर, यू नो, वैसा वाला इसमें फील आता है। तो मुझे ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस कॉलेज गोइंग एज वेल एज ऑफिस गोइंग, very casual events, maybe going for a movie, going out for like coffee with your friends or lunch with your friends, a very casual scent profile is what I feel. तो बिल्कुल नॉन सीरियस जिसको बोलते हैं ना, नॉन सीरियस सेंट प्रोफाइल, ये बिल्कुल उस तरीके से है। लेकिन ये जुविनाइल नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बचकानी सी फ्रेग्रेंस है, नो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मैच्योर फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस, और इसमें हल्का वो हीलियोट्रोप एंड रोज का नुआंस भी मुझे आता है। दिस काइंड ऑफ गिव्स मी अ रिमाइंडर ऑफ यारा बाय लताफा, द ओरिजिनल पिंक यारा बॉटल, ये मुझे उसका रिमाइंडर देता है। ये मुझे मार्शमेलो ब्लश का रिमाइंडर नहीं दे रहा, ओके। इसमें मुझे नहीं लगता कि एक फ्लफी मार्शमेलो इफेक्ट मुझे आ रहा है, मतलब टू माई नोज आई एम नॉट गेटिंग दैट। स्वीटनेस है वेनिला का, एक मिल्क शेक वाला फैक्टर है, आइसक्रीम वाला फैक्टर नहीं है। मतलब ये ना डेंस और थिक नहीं लगता, थोड़ा सा फ्लफी, लाइट, एरी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेंट है ये, काफ़ी फेमिनाइन है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आई लव्ड वेयरिंग दिस टू ऑफिस, एंड यू नो ऑन डेज व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू वेयर, बस कैजुअली आप एक कुर्ता लेगिंग्स पहन के आप जिस जल्दी में ऑफिस जा रहे हो, आपके बाल गीले हैं, डिसहेबिल्ड सिचुएशन है, ऐसे केसेस में जब सूझ नहीं रहा कि क्या लगाना है, दिस इज अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, उठाओ, लगाओ और चले जाओ, वैसा वाला। तो एवरीडे बेसिस पे मुझे अच्छा लगा। इसकी 100 ml की बॉटल 1200 का MRP है, बट करेंटली आदिल कादरी के वेबसाइट पे ये बिल्कुल गायब है। आई कांट फाइंड 100 ml बॉटल का एग्जिस्टेंस ऑन देयर वेबसाइट। आई कैन ओनली फाइंड 30 ml एंड आई कैन फाइंड अ बंडल ऑफ 3 ऑफ 20 ml ईच, सो 60 ml मुझे मिल रहा है, बट इसका 100 ml इनके वेबसाइट से गायब हो चुका है। तो मुझे नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है आदिल कादरी के वेबसाइट पे, बट लजीना का 100 ml फिलहाल इज नॉट अवेलेबल एट आदिल कादरी वेबसाइट। 20 ml अवेलेबल है, आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो, कुछ 300-400 के रेंज में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही थी कि अफोर्डेबल भी है, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी इट इज़ ईजी ऑन द पॉकेट। माई ओवरऑल रेटिंग ऑन लजीना इज an 8 out of 10। मैं थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी थी, और सेंट प्रोफाइल भी थोड़ा एडवांस एक्सपेक्ट करी थी। ओके, नाउ सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सफ़ीरा के बारे में। दिस इज हाउ द सफ़ीरा बॉक्स लुक्स लाइक। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ब्राउन रेड ब्लैक सिचुएशन गोइंग ऑन। पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स एंड प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज 100 ml बॉटल अगेन फॉर 1200 रुपीज़। करेंटली आदिल कादरी के वेबसाइट पे दिस वन इज अवेलेबल एट डिस्काउंट फॉर 800 रुपीज़ ओनली। तो आई थिंक प्राइस के हिसाब से ये परफ्यूम्स काफ़ी डिसेंट है, एंड ऐसे आदिल कादरी का पूरा लोगो बना हुआ है अंदर, एंड दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। इट्स एक्जैक्टली शेप एंड एवरीथिंग इज एक्जैक्टली सेम लाइक लजीना, ओनली द कलर कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट। इट्स गोइंग फ्रॉम रेड टू ब्लैक विथ अ गोल्डन कैप। तो पैकेजिंग तो इसकी भी बहुत अच्छी है। दिस इज समथिंग जो आप अगर वैलेंटाइंस डे या कुछ रोमांटिक इवेंट के लिए आप जा रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड गिफ्टिंग ऑप्शन इफ यू आर ऑन अ बजट। आदिल कादरी की फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी अच्छी है, सेंट प्रोफाइल और वो सिंथेटिक नहीं लगता, तो स्प्रेयर भी अच्छा है इसका, डिफ्यूजेस द प्रोडक्ट वेल। दिस फ्रेग्रेंस इज वेरी पोल्स अपार्ट फ्रॉम लजीना। ये एक बहुत फ्लोरल डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है। इसमें मुझे रोज, जैस्मिन, हल्का सा ट्यूबरोज, लॉट्स ऑफ सिट्रसी जेस्टीनेस, बर्गमॉट, थोड़ा सा मैंडरिन, मस्कीनेस, थोड़ा सा वुडीनेस, थोड़ा सा पच्चूली, थोड़ा सा ग्रीन नुआंस इसमें आ रहा है। इसके भी नोट्स ब्रेकडाउन तो नहीं मेंशन किए हैं आदिल कादरी ने, तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे क्या लिखा है मैं बताती हूँ। इन्होंने लिखा है कंटेन्स अल्कोहल एंड यूनिसेक्स, दैट्स द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन ऑन देयर वेबसाइट। आई डोंट नो, मतलब क्यों है ऐसी वेबसाइट, मतलब क्या कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है परफ्यूम के बारे में, सिर्फ प्राइस लिखी है, ML लिखी है, फोटो है परफ्यूम की। आई डोंट नो, लोग कैसे खरीदेंगे इसको अगर उन्हें पता ही नहीं है कि ये सेंट प्रोफाइल क्या है। कुछ तो लिखो, फ्लोरल,
जेस्टी, वुडी, कुछ तो लिखो अपने वेबसाइट पे, कुछ तो डिटेल दो अपने कस्टमर को। ठीक है, नहीं दे रहे तो हम ये वीडियो बना रहे। एंड वट एवर आई एम टेलिंग यू इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दैट्स माई नोज टॉकिंग टू यू, ओके, बिकॉज येस, इट्स I'm very nosy that way. So yeah, but see, there is no information. So I basically have to trust my nose on this, and you have to trust my nose on this. So yeah, this is a sharp fragrance. Okay, it's not something which is very pleasant to the nose, and this is something which is kind of a little dated. Matlab, I would love smelling this on my mom. Okay, it's a mature floral scent. It's kind of the fragrance which is more suitable for mature women who are more wise, who are more like who've seen more life. That kind of a scent profile. तो ये मैं पर्सनली लगाना प्रेफर नहीं करती। तो पर्सनली ये वाली सेंट प्रोफाइल मेरे ऊपर उतनी खिल के नहीं आ रही, थोड़ी सी शार्प आती है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स। नॉट एवरी सेंट प्रोफाइल इज मेड फॉर एवरी वन, एंड सफीरा इज kind of that sort of a scent profile which is not calling my name. I love myself a floral fragrance, but somehow this is not going well with my body chemistry. I'm definitely going to give this to my mom because I think this scent profile will be suitable for her. She loves this kind of classic floral makeup-y kind of fragrances, and I think this sits really well. Now this also gives me a longevity of around 6 to 7 hours. The sillage and projection is medium on this one. My overall rating on Safira is 6 out of 10. And the last fragrance that I want to review is White Oud. नाउ वाइट ऊद, मेरे पास ये 50 ml बॉटल है वाइट ऊद का। इसका जो बॉक्स है ये वाइट कलर का है विद गोल्डन लाइंस ऑन इट, एंड वाइट ऊद थोड़ा सा ब्राउन में लिखा हुआ है। लव द कलर कॉम्बिनेशन, एंड बॉक्स काफ़ी अच्छा दिखता है इसका। ये भी 50 ml का बॉटल है फॉर 1200 रुपीज़, नॉट 100 ml। 50 ml इज़ फॉर 1200 रुपीज़, एंड करेंटली उनके वेबसाइट पे ये अराउंड 800-900 के रेंज में अवेलेबल है। ओके, एंड इसका स्लीव पैटर्न है ओपनिंग का, जैसे शनाया के बॉटल का है ना वैसे ही है इसका, एंड यहाँ पे अंदर द परफ्यूम बॉटल इज सिटिंग इनसाइड। तो ये जो बॉटल है ये भी बिल्कुल शनाया रेंज, शनाया गोल्ड उसी की तरह दिखती है, और ये एक ऐसी मिल्की फ्रॉस्टेड बॉटल है जिसमें आप देख सकते हो कि परफ्यूम कितना यूज़ हुआ है। ओके, ओवरऑल मुझे ये बॉटल पसंद है। इसका भी लाइक स्लीक ही पैकेजिंग है और पर्स वगैरह में भी अच्छे से फिट हो जाता है। इसका सेंट प्रोफाइल और सेंट स्टोरी और नोट्स इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू व्हाट दिस इज अबाउट। इसका भी स्प्रेयर बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो 3 फ्रेग्रेंसेस मैंने लिए हैं उसमें से ये मेरा टॉप पिक है। आई जस्ट टेल यू दैट राइट अवे। अगर आपने मस्क साफ़ी एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम द हाउस ऑफ नसीम फ्रेग्रेंसेस, ये मुझे हल्का उसकी याद दिला रहा था। काफ़ी सॉफ्ट फ्लोरल, लिटिल बिट सोपी एंड वुडी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है ये। तो आदिल कादरी के वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन किया है दैट दिस इज लॉन्ग लास्टिंग एंड यूनिक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन सेंट सूटेड फॉर एवरी ओकेजन एंड हैवी प्रोजेक्शन। थोड़े थोड़े ओपिनियंस मेरे डिफर करते हैं, ये मुझे उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता। दिस इज गिविंग मी अराउंड 6 hours max, which I will not call long lasting. It is medium in performance. Strong masculine scent. ये मुझे यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगती है। आई लव वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस, आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन इट। तो मुझे लगता है ये यूनिसेक्स है, इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन सेंट। एक हल्का एनिमलिक टच इसमें जरूर आता है, बट दैट इज समथिंग विच ऑल्सो कैन बी worn very comfortably by a girl. Suitable for every occasion, I agree on that. This is the kind of fragrance which can be your skin but better, like your skin smell plus better, and it can be kind of like with overspray, it can be used as a special occasion fragrance. So I do agree with this part. Heavy projection, I don't agree with the heavy projection part because ये heavy projector नहीं है, ये soft projector है but prolonged projector है। अगर ये आपके ऊपर 6 घंटे चल रही है तो 6 घंटे में से 4 घंटे में ये सॉफ्ट विस्प देता रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं करता। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल परफॉर्मेंस। नाउ कमिंग टू द नोट्स ब्रेकडाउन, इट ओपन्स विद आर्टिमिसिया लेमन ऑरेंज, फ्रीशिया ब्लैक करेंट एंड पचूली, and tobacco, amber and musk. Surprisingly, I was like, white oud kahan hai? You know, the name of this fragrance is white oud, and oud is actually not present in the notes. So I don't know. But mere liye lemon, like the bergamot, the zestiness, the patchouli, freesia, blackcurrant and tobacco with some muskiness is the prominent note structure that I get here. Tobacco इसमें काफ़ी beautiful touch लेकर आ रहा है, जिससे वो एक रॉ एनिमलिक फील आ रहा है इस फ्रेग्रेंस में, पर बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है। मुझे बहुत पसंद आई ये सेंट प्रोफाइल, बहुत यूनिक लगी मुझे, और द यूज ऑफ टोबैको इन दिस फ्रेग्रेंस इज डन राइट, इट्स डन टू परफेक्शन। इसका नाम वाइट ऊद क्यों है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ओवरऑल ये सारे नोट्स ब्लेंड होकर वाइट ऊद का परसेप्शन दे रहे थे, इसलिए इसका नाम वाइट ऊद रखा है। मुझे वो लॉजिक अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन वो वाइट ऊद वाला फील दे रहा है, दैट आई कैन टेल यू, बट नोट्स में नहीं है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इट्स लाइक ज़ारा, जैसे ज़ारा करता है ना कि नाम कुछ रख दिया एंड है कुछ और, तो
kind of like that. But out of the 3 fragrances that I've experienced, ये वाला White Oath मेरा पर्सनल फेवरेट है आउट ऑफ द 3. ठीक है, रैंकिंग करते हैं तो रैंकिंग में White Oath is on number 1. Second is Lazina, and then third is Safira, which you may even skip, is what I feel. So इतनी scent profile इसकी unique नहीं है. तो White Oath और Lazina मेरे हिसाब से मेरे टॉपिक्स हैं. So that brings us to the end of the review of 3 fragrances from Adil Kadri. Who have experienced Adil Kadri fragrances? Which ones have you tried? Do let me know in the comments section. If you have any recommendations for me, or you want me to give some try to some other fragrances from Adil Kadri, do let me know in the comments section. Let's make that area chatty. Thank you so much for watching. Make sure that you have subscribed to my channel, hit the bell notification, and you follow me on Instagram. And I'm going to see you very, very soon in my next video. Bye.